Good morning, students of class 12th. We were discussing our first chapter from the book of Indian Economic Development, and the first chapter name was Indian Economy on the Eve of Independence, right? And in that topic, we have discussed that what was the exploitation of agriculture and the industrial sector, how the Britishers exploited it, right? Now in today's video, we will be discussing the exploitation done by the Britishers of the India's foreign trade, right? And let us discuss that. The exploitation of India's foreign trade. That how Britishers were able to exploit the India's foreign trade, right? See, what the Britishers did, they did two things. First of all, they converted our country to a mere exporter of raw material. हमारी कंट्री क्या थी? ओनली एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल. हमारे देश से सिर्फ और सिर्फ एक चीज एक्सपोर्ट होती थी, और वो क्या था? रॉ मटेरियल, मतलब कच्चा माल. वेदर इट इज कॉटन, हमारे देश से जाता था सब. कॉटन के बाद टिम्बर हमारे देश से आता था. स्पाइसेस हमारे देश से आते थे, right? All the raw material was being exported from India, and what we used to import only finished goods. We used to export raw material. हम बाहर के देश को रॉ मटेरियल बेचते थे और वहां से फिनिश गुड्स खरीदते थे. मतलब कि हमको अगर रोटी खानी होती थी तो हम आटा बाहर बेचते थे और वहां से रोटी मंगवाते थे. ऐसा नहीं करते थे कि रोटी अपने घर में बना लें, right? We used to export raw material and import finished goods, and this was not only लिमिटेड टू दिस. ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ यही करते थे. हमारा सबका सब एक्सपोर्ट और सबका सब इंपोर्ट सिर्फ और सिर्फ एक देश के साथ होता था, और वो देश था हमारा ब्रिटेन. और ये सब कुछ होता था ड्यूटी फ्री. हम ब्रिटेन को रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे ड्यूटी फ्री, विदाउट एनी एक्सपोर्ट ड्यूटी, और हम ब्रिटेन से फिनिश गुड्स मंगवाते थे डेट्स ऑल्सो ड्यूटी फ्री, विदाउट एनी ड्यूटी, राइट? And as only finished goods were imported, so the demand for Britain made goods increased in India. So demand for British goods, demand for British goods in Indian market increased. Because I have already discussed in the previous video that we were psychologically brainwashed that the Britain made goods were better, they were of better quality. So duty free import of British goods to expand the demand for British goods in India, right? So this was the policy, and they also exploited the international trade in a way that we were dealing with only Britain. We were dealing basically only with Britain, only with Britishers in the foreign trade, because Britishers made such a policy that we were only able to send goods to Britain. जैसे हमारी ये होम कंट्री है, हम तो किसी को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना. वेदर वी कैन एक्सपोर्ट इट टू अमेरिका, चाइना, चाइना तो हमारे घर के बगल में ही है, अफ्रीकन कंट्रीज. ऐसा नहीं होता था उस समय. We used to export it only to Britain.
हम सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करते थे, और ब्रिटेन उसके बाद जो अलग अलग कंट्रीज में यहां पर भेजता था हमारा सामान, बिकॉज the channel was made in such a way that if we are going to send goods to Britain, then it was duty free. I've already told you. Goods कैसे थे? Duty free थे. But if we want to sell it to any other country, कि हमें अमेरिका भेजना है, हमें चाइना भेजना है, हमें अफ्रीका भेजना है या अफ्रीकन कंट्रीज में भेजना है, तो इट वॉज हैवी ड्यूटी पेबल. तो ये लोग कंट्रीज क्या करती थी, ये लोग ब्रिटेन से परचेज करती थी, क्योंकि जो है यहाँ से ब्रिटेन जाता था, ब्रिटेन से थोड़ा सस्ता मिल जाता था इनको वहां से, राइट. So our country was merely converted into exporter of raw material and importer of finished goods, और वो भी सिर्फ और सिर्फ कहां से, ब्रिटेन से. सो आई होप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को कैसे, इंटरनेशनल ट्रेड को उन्होंने कैसे एक्सप्लॉइट कर समझ में आ गया होगा. जमींदारी सिस्टम, एग्रीकल्चर सेक्टर हमने पिछले वीडियो में समझ लिया था, और हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ही पिछली वीडियो में समझ लिया था. सो एक्सप्लॉइटेशन वाला टॉपिक हमारा पूरा हो गया कि उन्होंने तीनों सेक्टर्स को कैसे एक्सप्लॉइट करा था, राइट. Now we will be discussing the features of the Indian economy on the eve of independence, कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय हमारे देश की इकोनॉमिकल हालत कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी, राइट. सो लेट अस डिस्कस दैट. द फर्स्ट पॉइंट of the feature of the Indian economy was that we had a stagnant economy. हमारी जो देश की इकोनॉमी थी वो कैसी इकोनॉमी थी, एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी. तो फीचर्स में पहला पॉइंट क्या आ गया कि हमारी इकोनॉमी क्या थी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, राइट. नाउ व्हाट इज एन स्टैग्नेंट इकोनॉमी? व्हाट इज अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी? स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज वन in which there is no sign of growth, no or little sign of growth, right. Stagnant economy क्या है, in which there is no or little sign of growth. growth या तो बहुत कम है या फिर है ही नहीं. एक ऐसी इकोनॉमी थी इंडियन इकोनॉमी जिसके अंदर कोई ग्रोथ का साइन नहीं था, और अगर था भी तो बहुत छोटा था, ठीक है. बैकवर्ड इकोनॉमी. द इंडियन इकोनॉमी वाज अ, second point is Indian economy was a backward economy, means per capita income was low, right. Our per capita income was low, which showed that our economy was a backward economy. There was agricultural backwardness. In Indian economy there was agricultural backwardness. We have already discussed this many times, and you must have also heard it many times, that India is the agrarian state, कि भारत एक कृषि प्रधान देश है. We have already discussed it, we have already learned about it many number of times, कि हमारा जो देश है वो क्या है, एक एग्रीकल्चर स्टेट है. देश के अंदर ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर करते हैं, राइट. बट we were agriculturally backward at that time during the British rule, right. As there was low level of productivity, productivity बहुत low थी, right. And there was low production, and large amount of population was still employed in agriculture, right. पहला point क्या है, low productivity, and second point is low production. कि देश के अंदर प्रोडक्टिविटी भी कम थी और प्रोडक्शन भी कम था. नाउ कम टू दिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, राइट. सी, प्रोडक्टिविटी इज सेड टू बी measuring the produce per hectare.
जब हम कहते हैं कि हमारे देश के अंदर पर हेक्टेयर कितना प्रोडक्शन होता है किसी भी क्रॉप का, तो उसकी प्रोडक्टिविटी एक तरीके से ही जैसे हम लोग बाइक का एवरेज निकालते हैं ना, कि बाइक 1 लीटर में कितना किलोमीटर चल लेती है, दैट इज इट्स प्रोडक्टिविटी। कि हमारे देश के अंदर पर हेक्टेयर लैंड पे, राइट, पर हेक्टेयर लैंड पे कितना प्रोडक्शन होता है, दैट इज प्रोडक्टिविटी। सो एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस थी उस समय, पर हेक्टेयर लैंड पर प्रोडक्टिविटी कम थी, और प्रोडक्शन भी कम था। जब पर हेक्टेयर लैंड पर प्रोडक्टिविटी कम होगी तो ओवरऑल प्रोडक्शन भी कम होगा। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जब हम ओवरऑल प्रोडक्शन की बात करते हैं, राइट, पर हेक्टेयर लैंड के अकॉर्डिंग जब हम मेजर करते हैं तो वो क्या हो गया, हमारी प्रोडक्टिविटी। और जब हम टोटल प्रोडक्शन की बात करते हैं, डेट इज प्रोडक्शन। सो हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम थी और हमारा प्रोडक्शन भी कम था। नेक्स्ट इज लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन वाज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन किस में एम्प्लॉयड थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में। बट देन ऑल्सो जीडीपी कंट्रीब्यूशन बहुत कम था, तब भी उसके बाद बावजूद भी क्या था, लेस जीडीपी कंट्रीब्यूशन। ठीक है, एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। बैकवर्ड इकोनॉमी थी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, राइट। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, या फिर जो है नेक्स्ट टॉपिक हम जो है कल के वीडियो में रखते हैं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और आप लोग को समझ में नहीं आएगा, राइट। सो आई होप स्टूडेंट्स यू वुड हैव अंडरस्टूड दैट हाउ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वाज डन एंड दीज थ्री फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब हम लोग बात कर रहे हैं अभी 1947 की, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, कि जब देश आजाद हुआ उस टाइम पर हमारे देश की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी थी, राइट। नाउ we will discuss about the more features of the Indian economy in the next video. Till then, stay at your homes and stay safe. Thank you.